It's study time of science. So let's start today's topic. Today our topic is animal world. It means in this topic you will learn about animals. Students, in this topic you will familiar about habitat of animals, body covering of animals, breathing in animals, movement in animals, and migration. Students, you know different types of animals lives in different places. You can see different types of animals everywhere on the earth. अर्थ पर आपको अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे. दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस. प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. वो जगह जहां पर कि वो रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो उनका क्या होता है? हैबिटेट होता है. व्हाट इज हैबिटेट? Habitat, a place or an area where an animal lives naturally is called its habitat. वो जगह जहाँ पर कि एनिमल्स बॉर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं, उसी को उसका हैबिटेट कहते हैं. वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? अ प्लेस और एन एरिया where an animal lives naturally is called its habitat. According their habitat, on the basis of their habitat, we grouped animal into 5 groups. These are land animals, aquatic animals, amphibians, aerial and arboreal. Land animals, animals that live on land are called land animals or terrestrial animals. It means animals जो कि लैंड पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, डॉग, कैट, all are the land animals. All are the example of land animals. The next, aquatic animals. It means animals that live in water are called aquatic animals. वे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उनको aquatic animal कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, सी हॉर्स, जेलीफिश, शार्क, व्हेल फिश, all are the example of aquatic animal. They all live in water. The next, amphibians. Animals that live on both in water as well as on land are called amphibians. It means वे एनिमल्स जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलामेंडर, टॉर्टोइज, crocodile, frog, etc. are the example of amphibians. The next, aerial. Aerial animals. It means animals that spend their most of time in air are called aerial animals. वे animals जो कि most of time अपना एयर में स्पेंड करते हैं, एयर में बिताते हैं, उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. लाइक काइट, eagle, vulture. These are the example of aerial animals. Next, arboreals. Animals that live on trees. Animals that spend their most of time on trees are called arboreal animals. For example, squirrel, monkey. These are the example of arboreal animals. They spend their most of time on trees. Yes, students, according to your syllabus, we will learn about different types of habitat. What is habitat? I just explained you. Once again, I am telling you definition of habitat. A place or an area where an animal lives naturally is called its habitat. A habitat provides the animal with food, shelter, air and water. It means वो जगह जहाँ पर कि वो इजीली सरवाइव कर सके, उनको फूड, शेल्टर, एयर और वाटर मिल सके,
उस तरीके के हैबिटेट में वो एनिमल्स रहते हैं। हैबिटेट उनको एयर, फूड, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करवाता है। The different types of habitats found on earth are, the different types of habitat found on earth are forest, mountains, oceans, fresh water, deserts and polar regions. In your syllabus you will learn about these habitats and their animals that found in these habitats. First of all, forest. What is forest? What is forest? A forest is a large area thickly covered with trees and plants. Forest क्या है? एक वो large area है जो कि thickly plants और trees से covered होता है, जहाँ पर कि बहुत variety of plants आपको देखने को मिल जाते हैं and a variety of animals लिव इन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहां पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, जिराफ, डियर, स्नेक्स, रैबिट्स, all live, monkeys all live in forest. All types of animals you can found in forest. They all live in forest. Then next is desert. What is desert? A desert is a dry area. Desert क्या है? एक dry area है, often covered with sand, जो कि sand से covered रहता है, with little और no vegetation. क्या तो वहां पे आपको vegetation मिलेगी नहीं, plants वगैरह मिलेंगे नहीं, यदि होंगे तो बहुत कम होंगे. It receives very less rainfall. और वर्षा तो बहुत ही कम होती है, बहुत कम रेनफॉल वो रिसीव करता है, बहुत कम बरसात वहां पर होती है. कैमिल, रेटल स्नेक, ग्राउंड स्क्वायर etc. are found in desert because all these animals adapt themselves according dry climate, so they can found over there. Then polar regions. Polar regions. Next is polar region. Arctic and Antarctic are polar regions. Arctic और Antarctic क्या हैं? Polar regions हैं. They are covered with snow and are extremely cold. जो कि स्नो से कवर्ड रहते हैं, एक्सट्रीमली क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है. Polar bear, penguin, seal, walrus etc. are found in polar regions. These animals you can find in polar regions because they adapt themselves according that region, according that habitat. Then fresh water. Fresh water. River, lakes, ponds are example of fresh water. ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? फ्रेश वाटर के हैं. रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. ये एनिमल्स के फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं. फिश, फ्रॉग, सैलामेंडर, टोड, डक, स्वान, क्रेन etc. आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट. ये एनिमल्स कौन से? जो कि टोड है, डक है, स्वान है, सैलामेंडर है, ये सारे फ्रेश वाटर हैबिटेट एनिमल्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे. देन ओशियंस. एन ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सैलाइन वाटर. ओशियन क्या है? एक लार्ज बॉडी है. कैसी? सैलाइन वाटर की, जो कि सॉल्टी वाटर की बहुत बड़ी बॉडी होती है. इट इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द अर्थ. और अर्थ पर सबसे बड़ा हैबिटेट है. Whale, dolphin, octopus, seahorse, jellyfish etc. are the animals that are found in oceans. It means they found in saline habitat in oceans. Okay.
Then body coverings. Then body coverings of animals. We will study about body covering like cuticles, scales, cell, feathers, fur and wool. These different types of body coverings, different types of animals have these different types of body coverings. Next topic is body covering. In this topic we will learn about body covering of animals. Different types of animals have different types of body covering according their habitat to survive in their habitat. For example, cuticles, scales, shell, feathers, fur or wool. We will learn about these body coverings. Different animals have different body coverings. Body covering of an animal helps it to survive in its habitat. बॉडी कवरिंग क्या करती है, एनिमल को अपने हैबिटेट में सरवाइव करने में वो उसको हेल्प करती है. इस तरीके की बॉडी कवरिंग से वो अपने हैबिटेट में इजीली सरवाइव कर लेते हैं. क्यूटिकल. First of all, we will study about cuticle. Bodies of insects like beetle and a grasshopper are covered with hard cuticle. Most of insects are covered with hard cuticle that help them to survive in their habitat. That is known as that help them survive easily in their habitat. They have hard covering on their body that is known as cuticle. Then scales. Bodies of reptiles. It means animals that move by crawling method. जो कि रैंक कर चलते हैं, जो चलते टाइम अपनी बॉडी का एक लाइन एक जो कि सैंड पर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं. इट मींस एनिमल्स दैट मूव बाय क्रॉलिंग मेथड. जो रैंकर चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिश आर कवर्ड विद स्केल्स. रेप्टाइल्स और फिश की बॉडी किससे कवर्ड होती है, स्केल से. ऑन देयर बॉडी टू प्रिवेंट वाटर लॉस. जो कि वो उनसे कवर्ड होते हैं जो कि उनको वाटर लॉस से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस होने से उनको होने से बचाती है. फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इन द बॉडी. और फिश पर तो स्केल से ओवरलैपिंग होती है जो जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर नहीं करे और बॉडी के सरफेस को क्या नहीं करे, स्पॉइल नहीं करे. सो स्केल्स हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट इजीली. देन सेल. एनिमल्स लाइक tortoise, turtle and snail have a hard outer covering. ये सब for example tortoise, turtle, snail, they have hard covering on their body that is known as cell. उस hard covering को हम क्या कहते हैं, cell कहते हैं. It protect the soft body of the animals. उनकी बॉडी क्या होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है. उन एनिमल्स की बॉडी को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है. When these animals sense danger, they draw their head and feet into cell. जैसे ही उन वो एनिमल्स अपने सराउंडिंग में जैसे ही डेंजर फील करते हैं वो तुरंत अपने बॉडी को इनसाइड, सेल के इनसाइड क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, अंदर वो ले लेते हैं और इस तरीके से वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचा लेते हैं. दे कैन सर्वाइव इजीली इन देयर सराउंडिंग बाय द हेल्प ऑफ सेल. देन नेक्स्ट इज feather. Bodies of birds are covered with feathers.
आप देखते हैं कि बर्ड्स की पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है? फेदर्स से। फेदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। फेदर्स का क्या रोल है? वो बर्ड्स की बॉडी को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं एंड हेल्प देम टू फ्लाई, और फ्लाई करने में भी उनको हेल्प करते हैं। दे हेल्प देम टू फ्लाई ऑल्सो एंड कीप देम वार्म ऑल्सो। उनको गर्म रखते हैं और उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फर और वूल। नेक्स्ट, फर और वूल। Mammals like sheep and bear have fur or wool on their body. जैसे बियर और सीप, आप इनकी बॉडी पे देखोगे कि एक हेयरी कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फर। वी कॉल देम फर। That help them, that protect them from cold and rain, जो कि उनको कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करती है। फर की कवरिंग उनको कोल्ड और रेन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। Animals that live in polar region like polar bear have thick fur on their body that protect them from हार्श कोल्ड वेदर, जो कि हार्श कोल्ड वेदर से उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट देम कोल्ड एंड रेन। बियर हैव फर एंड शीप हैव वूल ऑन देयर बॉडी। बियर एंड पोलर बियर, दे हैव फर ऑन देयर बॉडी एंड शीप हैव वूल ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श कोल्ड एंड रेन। अपने आप को रेन और कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने बॉडी पे फर और वूल की एक कवरिंग क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, टाइगर एंड ग्रासहॉपर मर्ज विद देयर सराउंडिंग। कुछ एक एनिमल्स की बॉडी कवरिंग क्या करती है? उनको अपने सराउंडिंग में मर्ज होने में हेल्प करती है। अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनका कलर होता है, इसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग में छुप जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इट मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी कवरिंग होने से वो इजीली स्पॉट नहीं होते हैं, अपने एनिमीज को इजीली दिखाई नहीं देते हैं, और इस तरीके से वो एनिमीज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, इस प्रॉपर्टी एनिमल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। एनिमल्स लाइक कैमलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में मर्ज होने के लिए अपने कलर चेंज कर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रेस्ट ऑफ टॉपिक वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो।